Assalamu alaikum everyone. This is Ms. Nada Hussain. I'm your computer teacher, and today we will start the chapter computer viruses. This is chapter number 3, and I'll show you the video of it. Okay, so kindly please take a look. First of all, take a look to the video, and then we'll discuss about it. Okay, Mohammed Hussain also joined us. Wait a minute. This is computer virus and how to protect it. Just take a look. Okay, here are some description of computer viruses. So Malware can make entry onto your computer via questionable file. now I hope Viruses, can you all hear it? worms, Trojans, and bots are all Now please tell me everyone that can you hear the voice of the video? Yes, miss. Yes, Okay, miss. let me start it again. Yes. Let me start it again. Yes. viruses, worms, Trojans, and bots are all part of a class of software called malware. The overwhelming majority of malware is created to make money illegally, often by stealing sensitive and confidential information from victims' computers and mobile devices. Malware can also be used for cyber vandalism, cyber espionage, hacktivism, cyber warfare, and various other reasons. Malware can make entry onto your computer via questionable file downloads, visiting infected websites, or through email containing a seemingly benign link or attachment. Common types of malware. Viruses. Almost all viruses are attached to an executable file, which means the virus may exist on a system but will not spread until a user opens the infected program. Viruses often originate on the internet and spread when downloading a file infected with a virus, peer-to-peer file sharing, or email attachment. Trojan. A Trojan is a harmful piece of software that looks legitimate. Users are typically tricked into leading and executing it on their systems. Trojans can not only steal your sensitive data, they can also give cyber crooks access to your system. Trojans are employed to gain access to your computer's financial and personal information. Ransomware. Ransomware holds your PC hostage and demands money. It locks up your computer, threatening to destroy data, demanding ransom or a payment for release of your data, files, or to regain the ability to use your computer again. Spyware. Spyware secretly gathers private information about the user activity, such as internet usage, and logs keystrokes via the process of keylogging to steal passwords and other sensitive data. Worms. Worms can replicate themselves and infect multiple computers on a network, causing major damage. Network worms often use computer networks to spread, slowing down traffic and relying on security failures such as outdated operating systems and no antivirus programs installed. In contrast, viruses require the spreading of an infected host file. Worms are a standalone software and do not require a host or human help to spread. The best way to protect your system from malware is to keep your operating system clean by downloading regular patches,
updates, and making sure that your computer is protected by the latest antivirus software from a trusted vendor. Okay, I hope you understand. Let me share the मेरे more सवाल details. बहुत ज्यादा टीचर फटी ये फटी वीडियो आ आप रही हमें भेज देंगी? जी जी जी, ये मैं मेरे आपको इसमें भेज के आवाज बहुत दूंगी. ज्यादा फटी फटी आ ओके, अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम. इसमें हाउ आर आपको यू ऑल? बताया था जब भी आप कोई फाइल वगैरह डाउनलोड करते हैं उसके साथ वायरस वगैरह आता है, और देखिए, अगर इसमें आपको आपको इसको हटाना है तो आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वायरसेस के बारे में आपको इसमें बताया था. तो एक मिनट, अभी हमें वार्निंग सिग्नल्स तक बताया था मिस। वार्निंग सिग्नल्स भी बताए थे. वेट अ मिनट, मुझे और बच्चों को एडमिट करने दें. फिर मैं दोबारा एक और वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ जिसमें आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो इजीली समझ आएगी. आपको समझ आए मालवेयर और ट्रोजन में डिफरेंस क्या है, मालवेयर क्या करता है और ट्रोजन क्या करता है, जो दोनों के डिफरेंसेस हैं. Who is Uzma Imran? Kindly enter with your name because we have to admit and note down your attendance as well. अभी तक बच्चे एडमिट हो रहे हैं. आप लोग इतना लेट एंट्री करेंगे बेटा तो ऑब्वियसली फिर आप लोग की खुद की लॉस है. मैं कितनी देर तक अटेंडेंस के लिए आपका वेट करूंगी. Okay, this is 18 now. Let me show you one more time. So जो बच्चे अभी नहीं थे हमारे पास वो दोबारा वीडियो देखें. इसमें मालवेयर, ट्रोजन, वॉर्म्स, इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन है. काइंडली टेक अ लुक. ओके, Viruses, worms, now please take a look. Difference between viruses, malware, trojan, ransomware and spyware. Okay, just take a look carefully. viruses, worms, trojans, and bots are all part of a class of software called malware. The overwhelming majority of malware is created to make money illegally, often by stealing sensitive and confidential information from victims' computers and mobile devices. Malware can also be used for cyber vandalism, cyber espionage, hacktivism, cyber warfare, and various other reasons. Malware can make entry onto your computer via questionable file downloads, visiting infected websites, or through email containing a seemingly benign link or attachment. Common types of malware. Viruses. Almost all viruses are attached to an executable file, which means the virus may exist on a system but will not spread until a user opens the infected program. Viruses often originate on the internet and spread when downloading a file infected with a virus, peer-to-peer file sharing, or email attachment. Trojan. A Trojan is a harmful piece of software that looks legitimate. Users are typically tricked into leading and executing it on their systems. Trojans can not only steal your sensitive data, they can also give cyber crooks access to your system. Trojans are employed to gain access to your computer's financial and personal information. Ransomware. Ransomware holds your PC hostage and demands money. It locks up your computer, threatening to destroy data, demanding ransom or a payment for release of your data, files, or to regain the ability to use your computer again. Spyware. Spyware secretly gathers private information about the user activity, such as internet usage, and logs keystrokes via the process of keylogging to steal passwords and other sensitive data. Worms. Worms can replicate themselves and infect multiple computers on a network, causing major damage. Network worms often use computer networks to spread, slowing down traffic and relying on security failures such as outdated operating systems and no antivirus programs installed. In contrast, viruses require the spreading of an infected host file. Worms are a standalone software and do not require a host or human help to spread. The best way to protect your system from malware is to keep your operating system clean by downloading regular patches, updates, and making sure that your computer is protected by the latest antivirus software from a trusted vendor. Okay, can you hear me?
Yes, miss. Okay. Here, Yes, miss. in this video, they show you the difference between viruses, malware, Trojan, ransomware and spyware. वन बाय वन मैं आपको शो करती हूँ और इसको अपनी तरफ से एलिब्रेट भी करती हूँ, ठीक है? दोबारा से देखिए. Viruses, worms, Trojans, and bots are all part of a class of software called malware. These all sort of viruses are called the malware. And what is malware? Take a look. The overwhelming majority of malware is created to make money illegally, often by stealing sensitive and confidential information from victims' computers and mobile devices. The malware is a virus which always just stole the information of your computers and just harm you by doing this stealing things. ये आपकी चीजें स्टोर करके आपको इस तरीके से नुकसान पहुंचाता है. टीचर आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है. ओके, इसके टाइप्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं. अब सही आ रही है? ओके. Malware can also be used for cyber vandalism, cyber espionage, hacktivism, cyber warfare, and various other reasons. Malware can make entry onto your computer via questionable file downloads, visiting infected websites, or through email containing a seemingly benign link or attachment. Common types of malware. Viruses. Almost all viruses are attached to an executable file, which means the virus may exist on a system but will not spread until a user opens the infected program. Viruses often originate on the internet and spread when downloading a file infected with a Now listen to me. Majority viruses always comes from the internet. Okay, when we download any file, the pop-up menu shows, and when you click it just mistakenly, it always present in your computer with the virus. Okay, and remember one thing, ऐसा भी होता है कि जब हमारे किसी एक फाइल में वायरस हो, आप उसे क्लिक करें तो वो अपनी कॉपी बनाती रहती है. Okay, virus, peer-to-peer file sharing, or email attachment. ईमेल अटैचमेंट से या फिर आपकी जो शेयरिंग होती है, मींस आप अपने यूएसबी से, अपनी सीडी से, डीवीडी से आप इसको मूव करते हैं डाटा को, तो इस तरीके से आपकी ये देख लें, इस तरीके से आपके वो कंप्यूटर में स्प्रेड होता है. ओके. Trojan. A Trojan is a harmful piece of software that looks legitimate. Users are typically tricked into leading and executing it on their systems. Trojans can not only steal your sensitive data, they can also give cyber crooks access to your system. Trojan is a virus which not only take your data, it is also used by for the cyber crime. For example, अगर आप लोगों का कोई क्रेडिट कार्ड नंबर है या फिर कोई ऐसी इसकी डाटा है जो कि स्टोर हो रहा होता है, तो वो जो वायरस होता है वो ट्रोजन होता है. और मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुकी थी कि जब भी हम कोई डाटा स्टोर होता है हमारा, तो वो जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आता है, और वो सॉफ्टवेयर बनाने वाला कोई ऐसा बंदा होता है जो आपके कंप्यूटर से आपकी इंफॉर्मेशन लेकर उससे कोई फ़ायदा उठाना चाह रहा होता है. फॉर एग्जांपल, अगर किसी को आपको क्रेडिट कार्ड नंबर, या आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं जो कि इंटरनेट से बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड से उसकी पेमेंट करें, तो जब आप उसकी पेमेंट करते हैं तो वहाँ से जो ट्रोजन वायरस होता है, अगर वो एक्सेस कर लेते हैं, आप लोग उसको कंप्यूटर में ले आते हैं अपने, तो उससे आपका जितना डाटा होता है उस क्रेडिट कार्ड का, वो साइबर क्राइम के लिए यूज़ होता है. ओके, और इसका नुकसान ये होता है कि आपकी जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो उसको ले लेते हैं और उससे आपकी मनी को मिस यूज़ करते हैं. ओके, दिस इज टाइप ऑफ ट्रोजन वायरस. Trojans are टीचर मतलब वो access हमारे to your computer. यस बेटा. टीचर जो हमारे क्रेडिट कार्ड होते हैं उनको, उनके जो हमने पासवर्ड किए होते हैं वो ले लेती है और फिर हमारे पैसे भी कम हो जाते हैं इसकी जी, वजह से. इसमें से वो आपके मींस स्टोर करती है पैसे. तो ये वाला जो वायरस होता है जो आपकी इंफॉर्मेशन लेकर आपको इस तरीके से हार्मफुल इफेक्ट्स देता है, इज कॉल्ड द ट्रोजन वायरस. ओके, नाउ टेक अ लुक अगेन. Computer's financial and personal information. Ransomware. Ransomware holds your PC hostage and demands money. It locks up your computer, threatening to destroy data, demanding ransom or a payment for release of your data, files, or to regain the ability to use your computer again. एंड रैंसमवेयर जो सॉफ्टवेयर होता है, ये आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं लेता, आपके कंप्यूटर को हैंग करके स्टॉप भी कर देता है.
आप उसको यूज भी नहीं कर पाते और आपकी मनी भी स्टोल करता है. ओके. Spyware. टीचर नाम क्या है इसका? Spyware secretly Welcome gathers there. private information about the user activity, such as internet usage, and logs keystrokes via the process of keylogging to steal passwords and other sensitive data. Worms. Spyware always come from the internet and it always harmful your data by just stealing your passwords. Okay. जब आप लॉगिन करते हो तो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर आपके पासवर्ड्स को लॉगिन स्टोर कर लेता है और वहां से वो आपको इस तरीके से आपकी जब भी आप लॉगिन करके एंटर होते हो आपकी जो जो एक्टिविटी होती है वो स्पाईवेयर जो है वो स्टोर कर रहा होता है. जी बोले. टीचर जरा फॉर्म समझाइएगा. फॉर्म जब स्टार्ट करती हूँ फिर समझाती हूँ. Worms can replicate themselves and infect multiple computers on a network, causing major damage. Network worms often use computer networks to spread, slowing down traffic and relying on security failures such as outdated operating systems and no antivirus programs installed. In contrast, viruses require the spreading of an infection. Now, worms is something when have you seen the viruses in your computer lab? It is all worms because it always spread by computer to computer. Okay. और वो अपनी कॉपीज बनाता रहता है जिसके थ्रू वो आपको डिफरेंट तरीके से हार्मफुल इफेक्ट्स देता है. आपका कंप्यूटर स्लो कर देता है. आपकी जितनी भी प्रोसेसिंग है आप खोलेंगे कुछ खुलेगा कुछ. आपकी डाटा को वो स्टोर करके बिल्कुल अजीब किस्म से ना उसकी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है और वो एक से ज्यादा पे बहुत तेजी से स्प्रेड होता है. ओके. अभी मैं आपको इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन दूंगी. डोंट वरी. Infected host file. टीचर्स Worms are a standalone software and do not require a host or human help to spread. And remember one thing, a worm is such type of software virus in which you don't have to need any person to share it. वो ऑटोमेटिकली खुद से शेयर करता है अपनी जितनी भी वायरसेस है ना. वर्म उसको खुद से स्प्रेड करता है. ओके. यानी अगर आपका कंप्यूटर बंद भी है ना तो वो अंदर ही अंदर आपके डिफरेंट फाइल्स में खुद ब खुद कॉपीज बनाता है. आपके हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाता है और आपके सॉफ्टवेयर को तो वैसे भी करते हैं और इसके अलावा आपके हार्डवेयर का नुकसान पहुंचाने से मतलब ये है कि आपके डिवाइसेस को वो स्लो कर देता है. आपकी जितनी भी इसकी परफॉर्मेंस होती है हमारे कीबोर्ड की माउस की तो वो सब कुछ अफेक्टेड करता है. ओके. नाउ आई एम नॉट इन द बुक. जस्ट टेक अ लुक टू द elaborations of video. The best way to protect your system from malware is to keep your operating system. अच्छा, ये जितनी भी बातें हमने की हैं ये सारे के सारे मालवेयर के डिफरेंस बिटवीन मालवेयर एंड कंप्यूटर वायरसेस है ये. ठीक है. तो ये जितने भी आपके हैं ना ये आपके वायरसेस वर्म्स एंड ट्रोजन्स हैं ये सब मालवेयर के अंदर आते हैं. ओके. Clean by downloading regular patches. रेगुलर पैचेस वगैरह डाउनलोड करते हैं उसके थ्रू हमें ये सारे के सारे जो हमारे वायरसेस होते हैं ये हमारे कंप्यूटर के थ्रू इंटरनेट के थ्रू हमारे कंप्यूटर्स में आते हैं. समटाइम्स आपको कोई ईमेल आती है उसके थ्रू वायरसेस भी आ जाते हैं जो हमें इस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं. वार्निंग सिग्नल्स मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपके कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें हों जिसकी वजह से आपको ये मीन्स फील होने लगता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है. ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. आज मैंने आपको जो बताया है मालवेयर, कि मालवेयर क्या होता है, ट्रोजन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं. ठीक है. इनके बारे में बताया. जी बोले. टीचर मैं कह रही थी कि मालवेयर होता है कंप्यूटर वायरस से अलग होते हैं. कंप्यूटर वायरसेस की टाइप्स है. अब यहाँ पर आएंगे हम पेज नंबर 42 पर आ जाइए आप लोग सब. इसको एंड होने दो. इसके बाद पेज नंबर 42 पर आ जाइए. Updates and making sure that your computer is protected by the latest antivirus software from a trusted vendor. Okay, 20 participants हो चुके हैं हमारे. Let me take a picture of your name so that I can easily mark your attendance. Okay, 1 minute. This is Dania Imran. Okay, Halima, Huria, मुस्तफ़ा, राबिया, अरहम. अरहम ये कौन से अरहम है? काइंडली मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को. अरहम दोनों अरहम अपनी क्लासेस के साथ मेंशन करेंगे. 7M है तो 7M, 7O है तो 7O. yes, मैं हूँ अरहम आसिफ सैयद. बेटा दोनों सैयद अरहम आसिफ है. प्रॉब्लम ये है दोनों के दोनों सैयद नहीं एक मोहम्मद अरहम आसिफ है. दोनों सैयद हैं.
दोनों सैयद हैं मेरे पास, जो एंट्री में है वो दोनों सैयद अरहम आसिफ है। सो काइंडली आप प्लीज अपनी क्लास मेंशन क्या करें, मैंने आपको पहले भी बताया था, वरना आपके 7M. अटेंडेंस। ओके, तो राइट डाउन विथ योर नेम, अपने नाम के साथ आप अरहम आसिफ में मेंशन क्या करें। और ये सिर्फ मेरे पास ही नहीं, ये हर के लिए कह रही हूँ, हर टीचर के लिए, आपके लिए इजी होगा और उनके लिए भी। ओके फाइन। जितनी वीडियो देखिए आप लोग की समझ आई, आप लोग को जी वीडियो समझ आए। अच्छा, आप पेज नंबर 42 पर आ जाइए जरा, यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगी। वार्निंग सिग्नल्स तक हम कर चुके थे, हाउ टू स्प्रेड कंप्यूटर वायरसेस, ये भी हम आपको बता चुके थे कि ये किस तरीके से हम फाइल्स ट्रांसफर करते हैं या फिर अपना ईमेल ट्रांसफर करते हैं। डाटा ट्रांसफर करने से हमारी जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो इधर से उधर मूव होती है। नाउ द टाइप्स ऑफ वायरसेस, इन द टाइप्स ऑफ वायरसेस वी हैव द कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर वायरसेस आर द प्रोग्राम्स, प्रोग्राम वायरसेस होते हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं आपको, एक्सटेंशन जिनके क्या क्या होते हैं। It infects program files which have the extension like .com, .exe, .sys, .dll, .ovl and .scr. ये जो होते हैं ये program files are attractively targeted to the computer viruses because they are widely used and have relatively simple formats to of which viruses can attach themselves. The viruses become active when the infected files is executed. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर रिपीट कर रही हूँ कि ये जितनी भी फाइल्स के एक्सटेंशन आपको यहाँ दिए हुए हैं, इस तरह की कोई भी फाइल आपके कंप्यूटर में मौजूद होती है, ये जो प्रोग्राम फाइल्स होती हैं ये उसके साथ प्रोग्राम वायरसेस जो होते हैं वो इन प्रोग्राम फाइल्स के साथ अटैच हो जाती हैं। और जब आप इसको क्लिक करते हैं और जब भी आप इसको क्लिक करके आगे बढ़ते हैं तो ये वहाँ से इसकी कॉपीज बनाती है और आपके कंप्यूटर में मजीद स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम वायरसेस आर एसिड रेन, एलियन, 298। जो खोल को आता ही जी, मैंने आपको बताया था कि जब आप ओपन करते हैं तो आपकी प्रोग्राम फाइल्स की जो टाइप्स आ रही होती हैं, इसमें आपको साइड से एप्लीकेशन नजर आ रहा होता है, इसमें एप्लीकेशन लिखे हुए होते हैं। अगर आपने एक प्रोग्राम सेव किया है वर्ड का या फिर कोई एक्जी फाइल सेव करी होती है तो उसकी 5-6 कॉपीज बनी हुई होती हैं। तो वो किस तरह बनती हैं, आपकी जो भी वायरसेस वाली फाइल्स होती हैं आप उसको एक्सेस करते हैं तो वो अपनी कॉपीज बना वायरस देती है। कॉपी करते रहता है। जी, तो इस इज कॉल्ड प्रोग्राम वायरस, जो कि इन एक्सटेंशंस के साथ कनेक्टेड होता है, जो इन एक्सटेंशंस वाली फाइल्स के साथ आगे एप्लीकेशन के फाइल नेम के साथ आ रहा होता है, वो हमारे प्रोग्राम वायरसेस कहलाते हैं। ठीक है, और जो जो वायरसेस इसके अंदर होते हैं उनके नाम ये हैं एसिड रेन, एलियन 298, एमोबिया, एमोबा और ए करके क्रेजी ए, अम्ब्रेला, संडे, कैस्केड। ओके, इन वायरसेस के नाम ये हैं जो आपके प्रोग्राम वायरस पर अटैक करते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड इज बूट वायरस। बूट वायरस हमेशा क्या होता है, ये आपके बूट रिकॉर्ड्स को, जी, बूट वायरस always infects the boot records of hard disk and floppy disk. Generally, boot viruses are considered more dangerously than the program virus. इसका डिफरेंस क्या होता है, जो प्रोग्राम वायरस होता है वो आपके कंप्यूटर के स्टार्ट होने में प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन जो बूट वायरस होता है वो उसके बूटिंग इफेक्ट्स को, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं सी ड्राइव के, ये उसको अफेक्ट करता है। और उसको अफेक्ट करने का नुकसान ये होता है कि आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होता। Okay, so the boot virus is more dangerous than the program viruses, and इसकी जो examples हैं, the examples of the boot viruses are Danish boot, Devil.941, एक B, Disk Killer। अच्छा, Michelangelo, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है जो कि हमारे नॉर्मली कंप्यूटर में पाया जाता है। और स्टोन्स वायरस, ठीक है, ये वो वायरसेस हैं जो कि आपके बूटिंग इफेक्ट यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो हमारे मेन पार्ट्स होते हैं उनको अफेक्टेड करता है। जी बोले, क्या सवाल था आपका? हमारे उसके अंदर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क होती हैं, उनके ऊपर वो करता है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर बेटा। आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की पूरी डायग्राम मैंने समझाई थी, जिसमें आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं ड्राइवर्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सब चीज़ें आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती हैं। ठीक है, okay, then macroviruses. Macroviruses is a set of command written by the user but executed later. For example, if you execute a set of the command often in an Excel or MS Word, you can save that set of the command as a macro. A macrovirus uses the macro language for its program.
These viruses infect data, for example, MS Word, MS Excel file, and susceptible to macrovirus attack. And as other program allow the uses of macros virus spread rapidly as users share information documents. अच्छा होता है क्या है, ये वायरसेस जो होते हैं ये मेलिसा कॉन्सेप्ट, न्यूक्लियर, ये सब जितनी चीजें हैं, ये जो वायरसेस के नाम लिए हैं ये आपके एक्सेल और वर्ड की फाइल्स में होती हैं, ठीक है। ये आपकी वर्ड और एक्सेल की फाइल्स के थ्रू आपको नुकसान पहुंचाती है, उसके थ्रू ये अपनी कॉपीज बनाती है और उसके थ्रू ये स्प्रेड होती है। जो आपकी वर्ड और एक्सेल के थ्रू स्प्रेड हो रही है उन वायरसेस का नाम है मैक्रोवायरसेस, जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर को अफेक्ट करती है, आपकी स्टार्टिंग यानी बूटिंग अप के प्रोसेस को स्लो करती है और उसको हैंग करती है, वो हमारी बूट वायरसेस होती हैं। और जो आपकी एक्जी और OVL, SCL, सिस फाइल .com फाइल्स को अफेक्टेड करती हैं, वो हमारी प्रोग्राम वायरसेस होती हैं, ठीक है। इसके अलावा मालवेयर के बारे में अभी मैंने बहुत डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपको दिखाई है जिसमें ये वो, अच्छा मालवेयर की शॉर्ट फॉर्म होती क्या है? यस टीचर जी, टीचर मुझे मैक्रो वायरस समझ नहीं आया। macroviruses always comes in the word and excel files, okay। macroviruses आपके word और excel files को हार्मफुल करता है, ओके। आप समझ आया? मैम ट्रोजन की स्पेलिंग क्या है? सॉरी, यस आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन, क्या पूछना चाह रहे थे? मैं क्या आप वापस से रिपीट कर सकती हैं, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। Okay, I'm again repeating it. We have 3 types of computer virus which I've discussed right now. This is first is program viruses, जितनी भी हमारी .com, .exe, .sys, OVL इस तरह की जितनी फाइल्स होती हैं उनके साथ जो हमारे वायरसेस अटैच होते हैं that is called the program viruses, ठीक है। इसके बाद जो बूटिंग इफेक्ट्स को अफेक्ट करते हैं यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर को अफेक्ट करते हैं वो वाले प्रोग्राम्स हमारे होते हैं बूट वायरस, ठीक है। जो कि आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो सी ड्राइव में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सी ड्राइव के जितने भी कंपोनेंट्स जिससे हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, कंपाइलिंग करते हैं, असेंबलिंग करते हैं, ये सारे ड्राइवर्स वगैरह जो होते हैं इनको अफेक्ट करते हैं, जिसकी से हमारे कंप्यूटर स्टार्ट होने में प्रॉब्लम करता है, ओके। और जो हमारे मैक्रो वायरसेस होते हैं, मैक्रो वायरसेस हमेशा आपके वर्ड और एक्सेल की फाइल्स में घुसकर आपके कंप्यूटर्स में कॉपीज बनाते हैं और वहाँ पे आपके कंप्यूटर को अफेक्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर्स को, ओके। हमेशा याद रखिएगा आपके जितने भी वायरसेस हैं वो मेनली आपके सॉफ्टवेयर को अफेक्ट करते हैं, हार्डवेयर को नहीं। हार्डवेयर का नुकसान, हार्डवेयर की अगर आपका कंप्यूटर के अंदर वायरस है तो वो आपका माउस खराब नहीं करेगा, ना ही वो आपका CPU खराब करेगा, ना ही वो आपकी मॉनिटर पे अफेक्ट करेगा। ये अफेक्ट करता है हमेशा सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। सॉफ्टवेयर अफेक्ट करने से सिर्फ हमें ये नुकसान होता है कि अगर हम माउस से कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या हम कीबोर्ड से कुछ लिख रहे हैं तो वो जो वायरसेस होते हैं वो आपको उसको, मतलब अगर आप A लिख रहे हैं तो वो Z लिखेगा, तो वो आपको टाइपिंग में अगर आप क्लिक कहीं पे कर रहे हैं तो ओपन कुछ होगा, तो आपको ये अफेक्ट देते हैं। लेकिन आपके हार्डवेयर खराब नहीं होते, हमेशा वायरसेस आपके सॉफ्टवेयर पे अफेक्टेड होते हैं, ओके। हमारे अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं सबको। जी, डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है। इसके अलावा हमने टीचर मालवेयर के बारे में पढ़ा जी। हमें पता कैसे चलता है कि हमारे कंप्यूटर में कौन सा वायरस है? यही तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर एक्सेल और वर्ड फाइल्स के अंदर आपके वायरसेस आते हैं तो वो आपके मैक्रो वायरसेस होते हैं। अगर आपके कंप्यूटर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करते हैं, आपके कंप्यूटर की बूटिंग इफेक्ट्स में आपको तकलीफ देते हैं वायरसेस, तो वो आपके बूट वायरसेस होते हैं। अगर आपकी .com, .sys, .exe, .ol इस तरह की फाइल्स के साथ आपके कंप्यूटर वायरसेस अटैच होते हैं तो वो आपके प्रोग्राम वायरसेस होते हैं। बात समझ आई? ओके, देन वी टॉक अबाउट द मालवेयर। अभी आपको मालवेयर के बारे में मैंने आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी दिखाई है। मालवेयर बेसिकली होता है कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। द वर्ड रेफर्स टू एनी प्रोग्राम दैट infiltrates and harms a computer without the user's consent, यानी अगर यूजर क्लिक ना भी करे और उसके बगैर वो सारे के सारे वायरसेस स्प्रेड करें तो वो हमारे मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। ये हमारे कंप्यूटर वायरसेस होते हैं जिसके अंदर हमारे पास टाइप्स क्या होती है, worms, trojan, spyware and spam. Spam is also known as the जो वायरस अभी हमने पढ़ा था उसके बारे में।
तो ये सारे के सारे हमारे, इट इज ऑल्सो कम्स इन द मालवेयर सॉफ्टवेयर. ओके, मालवेयर कैन स्लो डाउन द कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क. इट कैन ऑल्सो एनॉय एंड इट कैन बी एक्टिवली डिस्ट्रक्टिव. ठीक है, ये हमेशा हमें नुकसान पहुंचाते हैं बहुत बड़े तरीके से. इसके बारे में हमने पढ़ा था. वॉर्म्स वो कंप्यूटर होते हैं, वो वायरसेस होते हैं जो रिप्रोड्यूसिंग करते हैं और स्प्रेड करते हैं बाय इटसेल्फ. कंप्यूटर यूजुअली मीन्स बाय द कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ये आते हैं वायरसेस, और ये खुद से स्प्रेड करते हैं. वॉर्म्स स्प्रेड विदाउट एनी ह्यूमन एक्शन. अभी मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था कि इसके लिए किसी ह्यूमन एक्शन की जरूरत नहीं है. वॉर्म्स खुद ब खुद आपको नुकसान पहुंचाते हैं. अगर आपका कंप्यूटर बंद भी है तो ये वॉर्म्स स्प्रेड हो रहे होते हैं. ओके, when the users do something like running an infected program or attach an infected file, तो ये क्या करते हैं, ये मजीद बुरी तरीके से जब भी आप इसको रन कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, वॉर्म्स अपनी फाइल्स बना के स्प्रेड कर रहे होते हैं. A worms email copies to itself and other computers, infect them, and then uses the address book of the infected computer to spread further. ये एड्रेस बुक बना के इसको मजीद बुरी तरीके से स्प्रेड कर रहे होते हैं. Computer worms usually do not cause direct damage to the program or file. However, they consume large amounts of the memory and network bandwidth, thus slowing down the computer and making it almost impossible for the user to work. For example, computer virus, code red, Sircam and I love you. ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे वायरसेस के कंप्यूटर वॉर्म्स के अंदर जो मैं बात कर रही हूँ, ये वॉर्म्स करता क्या है आपके कंप्यूटर के अंदर, इसकी इतनी कॉपीज बना देता है, इतनी कॉपीज इसकी बना देता है, इतने ज्यादा ये आपका हार्डवेयर यूज कर लेता है और आपकी बैंडविड्थ यानी आपकी स्पीड को इतना स्लो कर देता है कि आप नॉर्मली काम ही नहीं कर पाते. ओके, इसके अलावा टीचर, ये जो फॉर्म्स होते हैं ये बहुत सारी, मतलब जो हमारी ईमेल होती है उनको भी कॉपी कर करके बहुत सारे बनाते हैं, हमारी डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करते हैं और दूसरे जो कंप्यूटर होते हैं उनमें भी स्प्रेड हो सकते हैं. एग्जैक्टली. इसके अलावा ट्रोजन हॉर्सेस जो होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, the program that appears useful but it's actually programmed to pass the user's data to someone else. यानी आपको वो देखने में लगेंगे कि ये बड़े यूजफुल है, लेकिन ये आपके डाटा को स्टोर करके दूसरे तक पहुंचा रहे होते हैं. जिसने ये वायरस बनाया होता है वो आपके डाटा को स्टोर करता है. जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी थी कि आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन होती है, आपके अमाउंट्स होती हैं, वो सारी जो स्टोर करता है वो हमारा ट्रोजन वायरस होता है. ठीक है, ट्रोजन वायरस एक्सेप्ट करता है और स्टील करता है आपके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को, यानी आपके पासवर्ड्स को, आपके क्रेडिट कार्ड नंबर्स को, और इट डू नॉट रिप्रोड्यूस द इन्फेक्शन बाय अदर फाइल्स बाय रिप्लिकेटिंग और वायरस और वॉर्म्स. ये दूसरे वायरसेस और वॉर्म्स की तरह उसकी रिपीटेशंस नहीं बनाता, ना आपके हार्ड डिस्क को ये वो करता है, भरता है, ना ही आपकी स्पीड को स्लो करता है. ये सिर्फ और सिर्फ आपका डाटा स्टोर करता है. ठीक है, यही समझे ये चोर है आपके पासवर्ड और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं आपके कंप्यूटर्स के अंदर. ठीक है, मीन्स आपकी ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन जिससे डाटा उठाकर आपको नुकसान पहुंचाया जा सके. ठीक है, then the spyware refers to the program that secretly gather information about the user and relate to advertise or other interest parties. They are called the spy bots and tracking software. सॉफ्टवेयर होता क्या है हमारा, स्पाईवेयर एज अ सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी पर्सनल बायोडाटा जो आप वहाँ पे मेंशन करते हो अपने डाटाज वगैरह, उनको वो गैदर करता है और वो उनको पहुंचाता है. जैसे अगर कोई ऐसा कोई हमारी पार्टी होती है जो कि आपको इस तरीके से नुकसान पहुंचा रही हो कि आपका सारा डाटा लेकर आपके किसी इंफॉर्मेशन के थ्रू आपके लिए कुछ नुकसानदेह काम करना हो, तो वो हमारे स्पाईवेयर के थ्रू करता है. स्पाईवेयर ऑफन इंस्टॉल्ड विदाउट द यूजर्स consent when the user downloads something from the internet and the user click on something in the pop-up windows या ब्राउजिंग के थ्रू जब भी आप किसी चीज पे क्लिक करते हैं या डाउनलोड कर रहे होते हैं तो स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर उस वक्त घुस जाता है. ठीक है, स्पैम जो होता है वो अनसॉलिसिटेड अनवांटेड ईमेल्स होती हैं. डाउनलोड कर रहे होते हैं जी, तब घुसता है. स्पैम जो होते हैं वो ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, ऐसे अनवांटेड ईमेल्स होती हैं जो कि खुद से आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाती हैं, और अगर आप उस ईमेल को ओपन कर देते हैं तो वो स्पैम के फॉर्म में आपके कंप्यूटर में घुस के आपको हमेशा नुकसान पहुंचाती है. वो करती क्या है, some ways to avoid spams are, इसको अवॉइड करना बहुत इजी है. कैसे अवॉइड करेंगे, डू नॉट गिव योर ईमेल एड्रेस टू द अननोन पीपल एंड यूज द स्पैम फिल्टर ऑफ योर ईमेल इन द ईमेल एड्रेस. जब भी आप यूज करें तो अनवांटेड जो ईमेल्स होती हैं उसको ना खोलें, उसको स्पैम में ऑटोमेटिकली जब आप सेटिंग कर रहे होते हैं ईमेल की उस वक्त उसको आप इनेबल कर दें और डिलीट कर दें स्पैम मेल्स विदाउट रीडिंग.
ऐसी ऐसी ईमेल्स को खोलना ही नहीं है जो आपको स्पैम के तौर पे शो कर रहे हो। नॉर्मली हमारे कंप्यूटर में जब हम ईमेल एड्रेस बनाते हैं तो हम ऑलरेडी इसको इनेबल कर देते हैं कि जो भी आपकी स्पैम आए ना, स्पैम ईमेल्स आए तो वो स्पैम के फोल्डर्स में जाए, जिसको आप ओपन ही ना मतलब करें। जो स्पैम है, जो वो वाली ऐसी ईमेल्स दिखाते हैं जो हमें नहीं चाहिए होती है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम लोग मंडे के दिन जो पढ़ेंगे वो प्रिवेंटिंग वायरस इन्फॉर्मेशन, एंटीवायरस पढ़ के इसके बाद हम इसका बुक वर्क करेंगे और अपनी वर्कशीट्स को आप मंडे को पहले ले लीजिएगा जाकर, तो हम वर्कशीट पे काम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपका चैप्टर नेक्स्ट क्लास में ये खत्म भी हो जाएगा और हम इसको कॉपी वर्क भी और बुक वर्क भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा मैं जी। स्पैम जरा स्पाईवेयर को रिपीट कीजिएगा। बेटा हमारे मिनट्स खत्म हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। स्पैम ईमेल्स, अनवांटेड ईमेल्स होती हैं जो आपके कंप्यूटर्स में आती हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जिसको ओपन करने से। और स्पाईवेयर वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को गैदर करके किसी भी आपके समझो एनिमी को उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा होता है। ठीक है, और जो स्पैम ट्रोजन है, yes, स्पैम अनवांटेड ईमेल्स होती हैं जो कि आपके कंप्यूटर्स में आती हैं, जबकि स्पाईवेयर जो होती हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करती है और आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पहुंचाती है आपके जो भी जिसने ये स्पाईवेयर वायरस आपके कंप्यूटर में भेजा होता है। और ट्रोजन जो है वो हमेशा आपकी पासवर्ड और आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन होती है वो उसको स्टोर करती है। ठीक है, यहाँ तक हमने फिनिश किया है आज का लेक्चर। प्रीवियस तक आप पूरा रीड करेंगे, मैं कुछ वीडियोस शेयर करूंगी आपसे, आप उसको अच्छी तरीके से देखेंगे और इसको रीड करके नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम इंफॉर्मेशन इसकी जो वायरस की जो हमारे पास प्रिवेंशन है और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने के बाद इसका बुक वर्क करेंगे और हम अपना कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप स्कूल से जाके प्लीज अपनी सारे के सारे अपनी अपनी उठा लीजिए अपनी अपनी वर्कशीट। ठीक है, जिनके पास नहीं है वो अपनी वर्कशीट उठा लीजिए। ठीक है, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, okay, miss. अल्लाह हाफिज, Yes. अल्लाह हाफिज, Yes. अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस।